पीछे चला जाए. It makes me use the distributive property easily. मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है तो वो कन्वीनियंट हो जाता है अगर हम इस तरह से लिख लें. जो मोनोमियल है उसको पहले लिख लिया मैंने, और जो मेरी बायनोमियल है जो ब्रैकेट है उसको मैंने बाद में लिखा है. नाउ आई एम गोइंग टू यूज माय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो आई विल हैव 7a square b square multiplied with a. This will be the first product. Plus came from the bracket. Then the second product will be 7a square b square with b. Write down your simplified answer. 7. यहाँ पे आपके पास a की powers add हो जाएंगी. It becomes a raised to the power 3 or a cube you can say, b square, and here you add the powers of b. This is your answer. मैम इसके बाकी पार्ट्स बेटा हम वो नहीं कर रहे. Although actually the thing is it is similar, the parts are similar, so we are trying to reduce the work. एक ही चीज हम multiple times कर रहे हैं. Like अगर आपने 9.2 में भी observe किया हो, same ही चीज हम बार बार कर रहे थे. So we are trying to cover all the concepts, but we will limit the number of questions. ओके मैम. So from question number 3, we have to do 2 parts. Now you can see here, see question number 3 जो है, ये अभी हम पिछली एक्सरसाइज में करके आए हैं. This is product of monomials. अभी किया है हमने previous एक्सरसाइज में, right? तो फिर से उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, हम वही चीज अब यहाँ पे करेंगे. Let's do first part. You've got the product of a square 2a raised to the power 22 multiplied with 4a raised to the power 26. I hope you remember what the rules were. हम पहले अपने कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे. एंड सिंस एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है यहाँ पे, पावर्स ऐड हो जाएंगी. Multiplying my constants, the coefficients, then variables, p with p cube, q cube into q. This can be simplified. You get -4, adding the powers of p together, adding the powers of q together. This is your answer.
Have you done this? Yes, ma'am. Take a look at fourth question. Do you remember doing this last year? Simplify the expression. So this is the expression. You have to simplify. This will be step 1. Find its value for x equals to 3 and x equals to 1/2. This will be step number 2. आप पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे. यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट नजर आ रही है. दिस ब्रैकेट मींस मल्टीप्लिकेशन. आप इसको एक्सपैंड करोगे, लाइक टर्म्स कंबाइन करोगे, जितना भी सिंप्लीफाई हो सके. सिंप्लीफाई करने के बाद आप x की वैल्यू पहले 3 यूज करके आंसर निकालोगे, फिर x की वैल्यू 1/2 यूज करनी है. यू हैड क्वेश्चंस लाइक दीज लास्ट ईयर इन अलजेब्रा. एक पूरी एक्सरसाइज थी जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस थे. आपको बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिए थे और वेरिएबल्स की वैल्यू दी थी. आप वेरिएबल्स की वैल्यू रिप्लेस करके फिर सॉल्व करते हो. आपको यहाँ पे वही चीज करनी है दोबारा से. I'm just going to write down the question. I've got 3x in the brackets. It's 4x minus 5. And the values of x are x as 3. And the second part is x equals to 1/2. So the first step will be, as it is given in question, पहले आपको simplification करनी है. So 3x into 4x minus 5. This here is multiplication. और multiplication करेंगे हम by applying distributive property. 3x multiplied with 4x minus sign, 3x multiplied with 5. This becomes 12x square minus 15x. And then step number will be evaluation. Evaluation means to find the value. For the first part, put x equals to 3. तो 1/1, 12 as it is आ गया. x की जगह पे हम 3 यूज करेंगे. Can you see? जहां पे आपको कोई साइन नजर नहीं आ रहा, वहां पे मल्टीप्लिकेशन होती है. सिंप्लीफाई. मैम एक्सप्रेशन के साथ +3 भी है. Oh, I missed that. I'm sorry. Let's do this again. I have to change it. This was +3. Okay. Thank you, beta. This is +3. But okay. At this step, check if there are any like terms. अगर like terms हैं तो combine करो. If your expression contains any like terms, combine those like terms to obtain the simplified answer. At this point, we do not have any like terms, तो ये हमारा simplified answer है. जितनी terms है हमारे पास, कोई भी combine नहीं हो रही. So we can leave the simplification at this point and move on to step number 2. For step number 2, I have to use the value of x as 3. जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है, वहां पे 3 लिख दो. और अगर x की कोई पावर है, तो 3 की भी वही पावर लग जाएगी. तो आपके पास पहले है 12, इस x की जगह पे हम 3 लिख देंगे और उसकी पावर 2 माइनस 15. फिर से x की जगह पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा.
और यहाँ पे either you can use the sign of multiplication or you can use the bracket. Now simplify. Remember BOD mass use करना है आपको, पहले brackets use होंगी. अगर मैं सिंपली बोलूं सबसे पहले एक्सपोनेंट सॉल्व होंगे, देन आप प्रोडक्ट या फिर डिवीजन सॉल्व करते हो, एंड लास्टली यू सॉल्व ऐड और सब्ट्रैक्ट. सबसे पहले पावर सॉल्व करनी है जहां पे भी नजर आएगी. तो 3 की पावर 2 is 9. नाउ इफ देयर आर एनी मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन, सॉल्व दैट. उसके बाद हम प्लस माइनस कर सकते हैं. दिस इज 108 minus 45 plus 3. Solve from left to right or combine the integers with the same sign. It's better to solve from left to right. 108 minus 45, 63 plus 3, 66. For the same question, I've got one more part here. I have to now use in the same expression x as 1 by 2. Fraction hai, be very careful. 12 x square. If you want, you can write down your expression again. This is what we had. 12 as such, x square x की जगह पे 1 by 2 आ गया, minus 15 x की जगह पे 1 by 2 plus 3. पहले ब्रैकेट्स हैं जहां जहां पे पावर्स नजर आ रही हैं आपको, वो सॉल्व करोगे. तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1 by 2 का स्क्वायर. Now solve your products. So you get 3 minus 15 by 2 plus 3. I'm going to take the LCM altogether for this one. Or you can add 3 with 3, the whole numbers, then simplify. Kindly check, is this the answer? Those who are doing it on their own, please cross check. Your answer matches with mine. If anyone's writing down, kindly let me know. Excuse me, ma'am. जी बेटा. मैम जो फर्स्ट है पुट x इज इक्वल्स टू 3, मैम उसमें अपने साइड पे लेफ्ट टू राइट क्यों लिखे मैम, समझ नहीं आया. This was to solve this minus and plus. आपके पास addition subtraction है ना, तो या तो आप सिमिलर इंटीजर्स कंबाइन कर सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स इकट्ठे कर लो, नेगेटिव इंटीजर्स अलग से इकट्ठे कर लो, फिर आप सॉल्व करो. और यू कैन डू दिस फ्रॉम लाइक लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट से शुरू हो जाओ. 108 minus 45, तो पहले मैंने ये सॉल्व किया है, इससे आ गया 63, फिर मैंने नेक्स्ट ऑपरेशन सॉल्व किया है. ओके मैम. You could have combined the positive integers 108 and 3. That would be 111. फिर उसमें से 45 माइनस करना. Normally the mistake is बच्चे इनको ऐड कर देते हैं 45 and 3 को. 45 and 3 cannot be added. 45 is negative, 3 is positive. तो पहले ये बाद वाला ऑपरेशन नहीं सॉल्व करना, पहले लेफ्ट से शुरू करो. सबसे पहले आपको सब्ट्रैक्शन नजर आ रही है, ये दोनों वैल्यू सॉल्व कर लो, फिर +3 करना. दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक अ लेमैन्स रूल. अगर हम इंटीजर्स का रूल नहीं यूज करना चाहते, जस्ट अ क्विक वे टू रिमेम्बर सिंप्लीफिकेशन के लिए.
इफ यू रिमेंबर दैट कि आप पॉजिटिव इंटीजर्स इकट्ठे कर सकते हो, उसके बाद आप 45 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दैट्स ग्रेट. ओके मैम. Question number 5, we are doing parts A and D. Now we have combination of add, subtract and multiplication. Let's take a quick look on the question. A part, you have to add. Observe closely. आपको 3 expressions दिए हैं यहाँ पे add करने के लिए. लेकिन ये जो 3 expressions आपको दिए हुए हैं, इन तीनों expressions में multiplication हो रही है. तो step 1 ये होगा आपका, simplify each expression. That would mean product find करना है पहले. Step 2, addition हम उसके बाद करेंगे. वही रूल जो मैंने अभी मेंशन किया, पहले पावर्स सॉल्व होती हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, उसके बाद लास्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है. अगर आप बॉड मास वाला रूल भी देखते हो, तो हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस या माइनस. इन लास्ट पार्ट, इन डी पार्ट, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई दिस. आपको इस एक्सप्रेशन को, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, आपको ये पहला वाला जो एक्सप्रेशन है उसको सेकेंड एक्सप्रेशन में से माइनस करना है. लेकिन माइनस हम करेंगे आफ्टर वी सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन. एज यू कैन सी, एक्सप्रेशन नंबर 1 इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो पहले हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. Let's write down. I'm going to give you a note here before we solve. And by simplification, I mean find products wherever needed and combine like terms. अगर कहीं पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो कर दो, अगर लाइक टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर दो. उसके बाद हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 में, which is addition or subtraction. In addition, order is not important. In subtraction, be careful about the order. कौन सी वैल्यू को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, पहले कौन सा एक्सप्रेशन लिखना है, बाद में कौन सा एक्सप्रेशन लिखना है. That will be very important. Let's do first part. I'm just going to write down the question first. I have to add. Simplify. P multiplied by P minus P multiplied by Q.
From the second expression, again apply distributive property. Q multiplied by Q minus Q multiplied by R. The third one, R multiplied with R minus R multiplied by P. You get R square minus RP. Now I can do step number 2, which was to add P square minus PQ plus Q square minus QR plus R square minus RP. Open the brackets and see if there are any like terms which you can combine. If you want, you can reorder your terms. Reorder का मतलब आप अगर ये चाहते हो स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले लिख सकते हो, प्रोडक्ट वाली टर्म्स को पीछे लिख सकते हो. तो पी स्क्वायर आ गया आगे फर्स्ट प्लेस पे, पॉजिटिव क्यू स्क्वायर को मैं सेकेंड प्लेस पे ले आई हूँ, पॉजिटिव आर स्क्वायर इज एट द थर्ड प्लेस. बाकी सारे जो ये मल्टीप्लाई हैं पी क्यू क्यू आर आर पी, इनको मैं पीछे भेज रही हूँ. और जब आप टर्म्स को रीऑर्डर करते हो उनकी साइंस साथ रहती हैं उनके. If you want, we can do B part. Do you want to do B part? Yes, ma'am. All right, Yes, let's ma'am. do B part. You have to add 2x z minus x minus y and 2y z minus y minus x. So just for practice, let's do one more part. I'm going to simplify each of these first of all. Use distributive property. You will have 2x multiplied by z. एक ये product बनेगा, फिर negative sign आ रहा है. 2x multiplied by x, फिर negative sign आ रहा है. 2x multiplied with y. You get 2 times xz minus 2x square minus 2xy. Let's solve the second one. Again, use distributive property. Now we do the next step, which is to perform the addition. So ये जो expression आपके दो आए हैं, इनके बीच में addition sign लगा दो. Excuse me, ma'am. हाँ जी बच्चे. मैम अगर स्टेप 1 में फॉर एग्जांपल अगर 2x z माइनस x प्लस y होता तो मैम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लास्ट वाले 2x इंटू y से पहले प्लस आएगा फिर. Yes.
जो ब्रैकेट के अंदर साइंस है ना वही आएंगे। ओके मैम। अनलेस अगर हम नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है फिर। जैसे आई जस्ट गिव एन एग्जांपल हियर, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x को x माइनस, लेट्स टेक इट अ लिटिल इजियर, a प्लस b कर देते हैं यहाँ पे। तो अगर आप ये सॉल्व करते हो तो आपके पास आएगा 2x इंटू ए, बीच में प्लस साइन आ गया, फिर आ जाएगा 2x इंटू बी, ये बन गया 2xa प्लस 2xb। एक ये टाइप हो गई। अब इसके साथ मैं ये कर सकती थी, नेगेटिव के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर साइन चेंज होंगे। पहले ये मल्टीप्लाई होगा, -2x ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -2x बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये बीच वाला साइन देखो अपने आप चेंज हो गया। Does that help? Yes, ma'am. Okay. Now let's get back to the question. Open the brackets. ये भी आपने लास्ट ईयर किया होगा। अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो ब्रैकेट के जो टर्म्स होती हैं उनका कोई भी साइन चेंज नहीं होता, एज इट इज ब्रैकेट ओपन कर सकते हो आप। नाउ सी इफ देयर आर एनी लाइक टर्म्स, ऐसी टर्म्स जिनके वेरिएबल्स भी मैच करें और वेरिएबल्स की पावर भी मैच करें। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम एक्स वाई और वाई एक्स सेम होगा? yes, product is same, x multiplied by y, y multiplied by x same होंगे। 2 ओके into 3, 3 into 2। So I'm just going to combine these। ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई और इसको मैंने आगे कर दिया। लिस्ट द रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज, बाकी की सारी टर्म्स को एज इट इज कॉपी कर लो। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फ्रॉम हियर? इससे आपको क्या आंसर मिलेगा? -4xy। यस, कॉफिशिएंट्स इकट्ठे कर देने हैं, कॉफिशिएंट्स प्लस या माइनस हो जाएंगे। लुक एट द कॉफिशिएंट्स, -2 एंड -2, -2 दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं तो वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। आपने ये लास्ट ईयर शायद कॉलम्स में भी किया हुआ है, 2xy एंड 2xy, ये बन जाएगा -4xy। नेगेटिव थे दोनों, नेगेटिव नेगेटिव वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। सो इन दोनों से आंसर आपका क्या बन जाएगा? -4, और वेरिएबल सेम रहता है। Any questions at this point? नो मैम। Anyone who's writing down? Let's do ma'am. the last part, D part. Note down the expression carefully. It's a long expression.
Step 1 is to simplify. I'm going to solve the first expression. और यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं, एक ये प्रोडक्ट है और एक यहाँ पे है. Use distributive properties. And this one separately. Three A multiplied by A plus 3A multiplied by B plus 3A multiplied by C. Let's just focus on this. यहाँ से बन गया 3A square plus 3AB plus 3AC. अब जाते हैं दूसरे प्रोडक्ट पे. 2B multiplied by A, 2B multiplied by B, 2B multiplied by C. अभी मैंने ये माइनस यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ 2B से मल्टीप्लाई किया है, माइनस से नहीं मल्टीप्लाई किया. So I get 2BA minus 2B square plus 2BC. Now I'm going to open the brackets here. Now this minus will be multiplied with each. तो आपके पास बन जाएगा -2BA पॉजिटिव 2B स्क्वायर माइनस 2BC. At this step, you want to combine your like terms. See if there are any like terms here. Tell me, what will you get from here? AB. That's right. The remaining terms, just write them as such. बाकी की टर्म्स को नहीं मैंने छेड़ा, जो लाइक टर्म्स थी. ये वाली टर्म, इसमें AB प्रेजेंट है और इस टर्म में AB प्रेजेंट है, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया. +3 -2. +3 -2 will give me +1 और साथ में AB. बाकी की टर्म्स as it is हैं. Now I can go to the second bracket that I had. I'm just going to solve this one. 4C multiplied with -A, 4C multiplied by B, 4C multiplied by C. -4CA plus 4CB plus 4C square. Now I'm going to do the second step, which was subtraction. Subtract this expression जो पहले लिखा हुआ था from this one. Now you need to tell me here order क्या आएगा.
second expression minus first expression. Second. That's right. So जो पीछे वाला एक्सप्रेशन है, पीछे वाली ब्रैकेट वो आगे आ जाएगी, माइनस ये पीछे चला जाएगा जो इतना लॉन्ग सा एक्सप्रेशन है. And now you can open the bracket. Again ये माइनस अब ब्रैकेट की हर टर्म के साथ जाएगा, इसके साथ, इसके साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ और फिफ्थ के साथ. Combine any like terms if you have. There are no like terms. I've got two like terms, the ones which contain B, C. I've got these two